Guys, welcome back to Ansarkari. So, in our today's interaction, we will be dealing with our point of discussion will be polity, comparative studies of religion by Weber, religion and the rise of capitalism. As previously we have discussed the topic that will be law and religion by Max Weber. So, now we start with polity. So, what do you mean by rationalization of political system? Before discussion, can you tell me what do you mean by rationalization of political system of Max Weber? If no, you can think and write back. So, rationalization of political system is intimately linked to all elements of social system because it will eliminate all irrational to rational legal system. Because if a conscious policy of rationalizing policy, then administration automatically becomes rational. But thus, in all cases, the position of actor is derived by structural, that is state and cultural ration. So rationalization is based upon यानी कि it has proper rules and regulation. A procedure is followed that is ordered. So that we called as rational legal system. So by this, we can able to eliminate all irrational to rational legal system, and that is only possible by consciousness and awakening that our administration follows. How Weber defined polity. So he defined polity as community. उन्होंने क्या बताया? Polity is a community whose social action is aimed at subordinating to ordinarily do participation, territory and conduct of persons within it through readiness to resolve physical force, including arms. It is not existing everywhere. So, according to polity, by Max Weber, he is taking पॉलिटी एज अ कम्युनिटी जिसमें क्या होगा जो एक्शन है वो एक सबॉर्डिनेटिंग टूल की तरह करेंगे जिसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे एक टेरिटरी के अंदर वो पर्सन्स का कंडक्ट होगा कि वो फिजिकल फोर्सेस को यानी कि आर्म्स वगैरह का यूज ना हो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो तो इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सो हाउ वेबर ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी तो उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी को ट्रेस कहाँ से करा होगा ये भी एक क्वेश्चन है तो ये तो है नहीं हमने उसको मॉडर्न ड्रामा में जो वेबर ने स्टडीज एनलाइटनमेंट के टाइम से करी है तो मतलब इट मींस इट इज he traces the development of polity in primitive times as a violent social action which was not legitimate but इवॉल्व एज अ मोनोपोली यानी वो मोनोपोली की कोई एक पर्सन एक्ट कर रहा है उसी की चल रही है एंड रेशनल ऑर्डर थ्रू लॉन्ग टाइम बिकॉज डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी also evolved like in the west with progressive differentiation and most importantly subordinate rational single state. सो अकॉर्डिंग किससे हमें ये पता चल रहा है कि जो वेबर का जो ट्रेसिंग है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी का इट इज फ्रॉम प्रिमिटिव टाइम्स दैट इज इवॉल्व एज अ मोनोपोली not as a legitimate force and through a very long time struggle a rational order came into picture. So examples of rationality according to Max Weber. So he focused upon music, painting, cities. So let's see कि उन्होंने रेशनैलिटी पे म्यूजिक पे कैसे फोकस किया है पेंटिंग पे किस तरीके से उन्होंने रेशनैलिटी का एग्जांपल बताया सिटीज में कैसे उसको बताया है सो cities in Weber's relatively closed उनके अकॉर्डिंग क्या थी कि वो relatively closed है relatively large possess marketplace है पार्शियल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यानी पार्शियलिटी भी है वहाँ पे सो सिटी रिक्वायर्स रिलेटिवली रेशनल इकोनॉमी तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज की है रेशनल तो उन्होंने इस तरीके से इसको रेशनलिटी का एग्जाम्पल बताया दूसरा इन्होंने बोला है म्यूजिक इज ऑल्सो रेशनल अब वो कैसे है बिकॉज इट इज अ प्रोसेस ऑफ calculable affairs operating with known means of effective instruments
एंड अंडरस्टैंडेबल रूल्स। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि वो भी एक तरीके से रेशनल है। म्यूजिक कैसे, क्योंकि इसमें जो हमारे फील, जो हम म्यूजिक के थ्रू क्या अपने मन की भावनाओं को दिखाता है, या फिर कोई अफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उनको बताया जाता है, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये भी रेशनल है। यानी इसमें भी प्रॉपर कोई कोई ना कोई चीज इंपॉर्टेंट है और उसमें रेशनलिटी शो हो रही है। सो नेक्स्ट इज पेंटिंग। सो उन्होंने कहा कि जैसे लाइंस के थ्रू स्पेटल पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने एक एग्जांपल लिया गॉथिक वर्ल्ड एज अ मींस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रेशर ऑफ रूफिंग स्पेसेस ऑफ ऑल फॉर्म्स। सो इस तरीके से वेबर ने पेंटिंग, सिटीज, म्यूजिक, इनको एक रेशनल कंसेप्ट लेके उनको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम इनको बोल सकते हैं कि ये रेशनल है या नहीं है। So I hope it is clear. Next we move to comparative studies on religion by, so first उन्होंने comparative studies की अलग अलग जगह पे, जैसे कि उन्होंने चाइना में बताया, तो चाइना में क्या था कि उन्होंने रिलेट किया कन्फ्यूशियनिज्म इन चाइना। तो उनके आइडियाज क्या क्या थे कि वहां पे क्या हो रहा है, बिलीव इन द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि कॉस्मोस का बिलीव है। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया ह्यूमन बीइंग शुड एम एट बीइंग इन हार्मनी विद नेचर एंड द कॉस्मोस। तो वहां पे उन्होंने रिलेट किया कि इनके अकॉर्डिंग चाइना में ह्यूमन बीइंग इस तरीके से हार्मनी, पीस एंड हार्मनी मेंटेन है विद नेचर एंड द कॉस्मोस। देन थर्ड विल बी बिहेवियर इज टू बी गाइडेड बाय ट्रेडिशन, ऑल विजडम लाइज इन द पास्ट। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सारे की सारी विजडम है वो हमारी कहाँ मिलेगी, हमें पास्ट में। और उन्होंने एक और पॉइंट ऑब्जर्व किया कि फैमिली एंड किन टाइज एंड ऑब्लिगेशन बट नेवर टू बी नेग्लेक्टेड, कि वो कभी भी नहीं छोड़े जाने चाहिए। ऐसा रिलीजन के प्रति चाइना में उन्होंने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेंस इन ऑफ जुडाइज्म इन वेस्ट एशिया। तो वो क्या थी, इट इज मोनोथेस्टिक रिलीजन। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जुडाइज्म है वो क्या है, मोनोथिस्टिक रिलीजन, यानी बिलीव इन वन गॉड। देन दैट इज द जूस बिलीव देमसेल्फ टू बी चूजन वन ऑफ द गॉड और यहाविया। तो उनके अकॉर्डिंग कि वहां पे जो सिर्फ है जूस वही पॉपुलर होने चाहिए, तो उन्होंने मोनोथिस्टिक रिलीजन वहां पे फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट हिंदुइज्म इन इंडिया, द आइडिया ऑफ कर्मा, धर्मा एंड पुनर्जन्म मेड इंडियंस डिफीटिस्ट, फैटलिस्टिस्ट। उनके अकॉर्डिंग ये आइडियाज थे हिंदुइज्म इन इंडिया में। तो एक और थिंकर का नाम हमें यहाँ पे मिलता है देखने को, डेट इज मिल्टन सिंगर। तो कैसे वेबर के आइडियाज उनसे थोड़े डिफरेंट थे और उन्होंने मिल्टन सिंगर के आइडियाज में क्या ऑब्जर्व किया है, फिर उस तरीके को किस तरीके से उसको रिलेट किया गया। तो मिल्टन सिंगर हैज प्रेजेंटेड अ फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट ethic in India in his study of leading industrialists of the city of Madras. So what he observed mass compartmentalization। वो किस तरीके से उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है वो अलग है, यानी कि डिस्टिंक्ट है एज कंपेयर टू रीजनल ऑब्लिगेशन से, दैट इज ऑब्जर्व बाय मिल्टन सिंगर। तो उनका जो कीवर्ड क्या आप बोलोगे यहाँ पे, मास कंपैटिबिलिज्म, और उसको किस चीज से रिलेट किया है, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस ऑब्लिगेशन एंड रिचुअल ऑब्लिगेशन, यानी इकोनॉमी और कल्चरल को उन्होंने थोड़ा अलग करके देखा। दैट नेक्स्ट इज रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म। सो रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, आई होप आपके थोड़ा थोड़ा माइंड में आ रहा होगा कि किस तरीके से रिलीजन को भी कैपिटलिज्म से रिलेट करने वाले, यानी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी हमें रिलीजन देखने को मिलेगा। बिकॉज हम प्रिमिटिव टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की घटना हो रही थी जिससे वो ऑब्जर्वेंस दोनों इंटरकनेक्टेड थे। So Weber concern was varieties of world religion and development only in the west of capitalist economic system. He worked at the social, structural, cultural, that is thoughts and action. किस किस के थे वो thoughts? Calvinist, Buddhist, Confucians, Jews, Muslims, etc. So ideas, उनके अलग अलग ideas की उन्होंने focus किया। So he was interested in the system of religion, in the spirit of capitalism, and in rationalization in modern system of norms and values.
ही इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, यानी कि कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी में इन विच दे एग्जिस्ट, thereby acting as a barrier or facilitator to rationalization and structural aspects of capitalism in the West and rest of the modern world. सो उनका एक इंटरेस्ट था कि हम सिस्टम ऑफ रिलीजन और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में भी इंटरकनेक्शन हो सकता है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। तो उनके लिए यही सारे फीचर्स थे जिन्होंने उसको, और वेस्ट उस तरीके, जब वो वेस्ट में स्टडी कर रहे हैं वही उसको हेल्प कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड कैपिटलिज्म। सो इकोनॉमिक फोर्सेस इन्फ्लुएंस्ड प्रोटेस्टेंटिज्म। मैक्स वेबर ने दोनों के बीच में रिलेशनशिप, मेन मेन जो धागा था वो क्या था, प्रोटेस्टेंटिज्म, और दूसरा था इकोनॉमिक फोर्सेस इन्फ्लुएंस रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म के अलावा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया रिलीजन को इकोनॉमिक फोर्सेस में। रिलीजियस आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड इंडिविजुअल थॉट्स एंड एक्शन, और ऐसे रिलीजियस आइडियाज हैड अ यूनिक इफेक्ट इन द वेस्ट। religious idea system in non-western world that are structural barriers to, अब रेशनलाइजेशन की प्रोसेस में जो उनका मानना था वो मेन एरर क्या था कि हमारे पास स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू रेशनलाइजेशन है क्या, कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में वो आइडियाज प्रोपोगेट नहीं हो रहे हैं, तो वही एक तरीके से मेन बैरियर होगा। सो हाउ वेबर सोशियोलॉजी रिलेटेड टू मैक्स Karl Marx thought in terms of making up social structure. So social structure हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी यहाँ पे हम सिर्फ वेबर ने किस तरीके से रिलेट किया है कार्ल मार्क्स से उस पर फोकस करेंगे। सो ग्रेट इंपॉर्टेंस गिवन टू रिलीजियस फैक्टर्स लाइक मार्क्स, Weber is also operating a complicated model of interrelationships, primarily large-scale systems. Thus, it can be said that Weber's sociology is related to Marx's thought in common attempt to grasp the interrelations of institutional orders making up social structure, यानी कि इंटरकनेक्शंस की बात कर रहे हैं जो दोनों ने एक एक तरीके से ही अटेम्प्ट किए या फिर फोकस किया। Therefore, in Weber's military, religious, political, judicial institution system are functionally related to orders in many ways because, as Weber said himself, not ideas but maternal and ideal interest directly develops each man's conduct, कि आप क्या करने वाले हो तो वही आपका डिसाइड करते हैं। So now here is asceticism and Calvinism are two typologies that were developed to analyze the relationship between religion and economy for the path of, तो यहाँ पे हम एस्केटिज्म डिस्कस कर लेते हैं, कैल्विनिज्म के हम फीचर्स और उसको थोड़ा और ब्रीफली पढ़ेंगे, वो हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा। सो एस्केटिज्म तो यही है कि जो फिजिकल प्लेजर्स है और कंफर्ट है उनको आप छोड़ दिया जाए टू प्योरीफाई और इम्प्रूव द सोल। तो वही एक तरीके से जो फॉलो करते थे फिलोसफर्स रहे हैं उन्होंने यही पाथ ऑफ साल्वेशन माना है, बुद्धिज्म में भी यही हुआ था। सो आपको फिजिकल प्लेजर्स और कंफर्ट को छोड़ के जो भी आप एक्शन करोगे टू प्योरीफाई और इम्प्रूव द सोल, दैट इज पॉइंट, दैट इज योर एक्शन and that helps in you the path of the salvation. So Calvinism motivated to systemize their own conduct, but in both types there is some type एक्शन, सेल्फ डिनायल भी होता है, मिस्टिज्म भी होता है, फॉल्स बिलीव्स भी होते हैं, मोशन भी होता है, इनएक्शन भी होता है। सो ही डिफाइड, ही आल्सो डिवाइडेड मिस्टिज्म। अब मिस्टिसिज्म को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया, किसने, मैक्स वेबर ने, कि वर्ल्डली रिजेक्टिंग मिस्टिज्म यानी टोटल फ्लाइट फ्रॉम वर्ल्ड, यानी या तो बिल्कुल दूर भाग जाओ वर्ल्ड से, एंड इनर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म मेकिंग एफर्ट्स एंड कंटेम्पलेशन टू द वर्ल्ड, या फिर उसी वर्ल्ड में रह के डील करना। सो इट विल रिजल्ट इन टू फेलियर बिकॉज द वर्ल्ड इज बियॉन्ड इंडिविजुअल। सो हम उसमें ये नहीं बोल सकते कि ये उनका फेलियर हुआ कि बिकॉज वर्ल्ड इज बियॉन्ड इंडिविजुअल, वहां पे ये एक पर्सन के थ्रू नहीं बताया जा सकता, बिकॉज इट इज अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, यानी होल सिस्टम है वो पूरा का पूरा। Thanks for watching. Please like, share, subscribe our, and you can join us for more such videos. Thank you very much.